Hello students, so we are going to start with the new chapter, that is morphology of flowering plants. Morphology of flowering plant. So all of you know that a plant has a root system and shoot system. The root and its branches comprises the root system, and the shoot and the branches, flower, fruits, leaves, all comprises the shoot system. So a plant has root system and shoot system, and both root and shoot system is derived from embryo. So the body of the plant is derived from embryo, and embryo कहाँ पर है? Embryo seed के अंदर है. Inside the seed, the embryo are present. The embryo is present inside seed. And what is the structure of embryo? Embryo is having two parts. Suppose if you study the structure of the embryo, this is having two parts, and this is known as cotyledonary node, and these are embryonal axis. And to this node the cotyledon is attached. This is one cotyledon. Suppose in a dicot plant there are two cotyledons, and this part is known as the tip of the embryonal axis. This is known as plumule. This is known as plumule, and this is cotyledon. So this total part is known as tigellum. It is called as tigellum or embryonal axis. And this is the middle of the embryonal axis. Total is the embryonal axis. This is the middle from to which the two cotyledons are attached. So this is known as cotyledonary node. And the below part of the embryo, here is the radicle. Radicle. So the part of the axis, ये जो एक्सिस का जो पार्ट है ना, जो प्यूमुल और cotyledonary नोड के बीच में रहता है, this is called epicotyle. This is called epicotyle. And the part of the embryonal axis which is in between node and the radicle is known as hypocotyle. So this is the structure of the embryo. इसका मतलब है embryo is consisting of this axis and two cotyledons. So embryo is equal to tigellum. Tigellum का मतलब क्या है? This embryonal axis plus cotyledon or cotyledons, because in the monocot there is a single cotyledon, and in the dicot there are two cotyledons. So it may be cotyledon or it may be cotyledons. So the embryo consists of tigellum, the embryonal axis, and cotyledons. So plumule gives rise to the shoot system. So plumule germinate to give shoot system, and the radicle germinate to give root system. The radicle germinate to give root system. So there is two end point of the axis. embryonal axis का दो end point है, एक है plumule, दूसरा है radicle. The upper end point is plumule, which gives rise to the
shoot system of the plant or stem of the plant, and the radicle of the axis which is at the lowermost end, that gives the root system of the plant. So you don't think that ये मत समझना कि ये axis ही only embryo है. No, this axis plus cotyledon, totally it represents embryo. And this cotyledonary node, the cotyledonary node is the origin of two cotyledons. So the two cotyledons are attached to the cotyledonary node. Now we will give some information. We will give some information regarding the angiospermic plant. So, which one is known as the smallest angiospermic plant? Important points we will discuss. The smallest angiosperm. The plant name is Wolffia. And the smallest parasitic angiosperm, it is a dicot plant. Smallest parasitic angiosperm is Archeuthobium. The largest angiosperm is Banyan. In the area wise, the largest angiosperm is banyan tree, Solanum, that is Ficus bengalensis. Ficus bengalensis, or it is known as banyan tree. The tallest angiosperm is Eucalyptus. So, all of you know about the tallest gymnosperm, that is Sequoia. Redwood tree is the tallest gymnosperm, and tallest angiosperm is the Eucalyptus. If you compare between the height between the Eucalyptus and the Sequoia, then the tallest is Eucalyptus. So, tallest angiosperm is Eucalyptus, and among the all plants, the tallest is also Eucalyptus, that is taller than the Sequoia plant. The angiosperm plant having largest flower, angiosperm with largest flower, that is Rafflesia. The plant name is Rafflesia, is having largest flower. And angiosperm with largest leaf is Victoria. So, angiosperm with largest leaf, that belongs to Victoria plant. Its full name is Victoria regia. So, you just remember the genus name of that plant. Okay. So, different types of plants are angiospermic plants are there.
based on the size and the nature, that is called habit. Based on the habit or the nature of the stem, basically the angiosperms are different type, like the herbs, shrubs, trees, lianas, climbers, different types of plants are there. Okay. So different types of angiosperms. So first one is herbs, very small plant, weak stem, cannot grow taller, the grass like plants known as the herbs, flexible soft stem, okay, that is smallest plants with flexible soft stem. Smaller plants with flexible soft stem. Example, all grasses. All grasses belong to herb category. The habit is called herbs. Next is the shrubs. Shrubs में क्या होता है? These are the bushy plants, bush type appearance, so called bushy plants. And इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वुडी है. वुडी मतलब जिसमें लकड़ी वाला थोड़ा पोर्शन होता है, उसको वुडी प्लांट बोलते हैं. जो नीचे वाला हिस्सा है वो वुडी है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट हर्ब टाइप का सॉफ्ट है, तो उसको बोलते हैं हर्बासियस. सो वुडी बिलो एंड herbaceous towards apex. Woody below and herbaceous towards apex. तो जितने भी सब छोटे छोटे प्लांट है ना, मिडिल साइज का, जैसे कि रोज प्लांट है, जैस्मिन प्लांट है, these belong to shrub category. Example, rosa. The scientific name is rosa, English name is rose. Then is jasminum. It is jasmine. ये सब फूल वाले सब पेड़ है, छोटे छोटे बूस टाइप का पेड़ है. ठीक है. Next we will go to the tree category. Trees are the great height plants. And based upon the shape of the branches or shape of the tree, it is named differently. Number 3 are trees. Trees are great height plants. And trees are different types. One is called caudex, unbranched stout stem, that is caudex. ठीक है, unbranched stem with crown of leaves. आपने देखा होगा कि नारियल की जो पेड़ है और पाम ट्री, कोकोनट ट्री, तो आपने देखा होगा कि उस सब प्लांट का एक ही स्टेम है. द मेन स्टेम ग्रोज अबव, देयर इज नो ब्रांचिंग, और उसका जब पत्ते गिरते हैं ना, वहाँ पर एक स्पॉट हो जाता है, स्कैर ऑफ फॉलन लीव्स. और आप नारियल पर देखेंगे उनका जो पत्ते होते हैं वो अपर रीजन में होते हैं, लाइक द क्राउन. जैसे क्राउन होता है ना, जो कि सर के ऊपर क्राउन को रखते हैं, उसी टाइप का द लीव्स, द ग्रुप ऑफ लीव्स एट द टॉप ऑफ द मेन स्टेम, दैट इज कॉल्ड द क्राउन ऑफ लीव्स. सो अनब्रांच्ड स्टेम विथ क्राउन ऑफ लीव्स, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ काउडेक्स. द एग्जाम्पल है कोकोनट ट्री. अनब्रांच्ड स्टेम with crown of leaves.
So example is cocos. Cocos is coconut. And the palm tree, another example is the palm tree. डेट पाम भी आप बोल सकते हैं, और दूसरा जो नॉर्मल पाम भी उसको बोलते हैं बोराशस, नॉर्मल पाम. फोएनिक्स इज द डेट पाम. फोएनिक्स इज द डेट पाम ट्री. Phoenix is the date palm and cocos is the coconut. Okay. उसके बाद है कॉल्म. तो स्टेम को कॉल्म बोलेंगे या प्लांट को भी कॉल्म बोलेंगे. आप बाम्बू देखे होंगे, बाम्बू प्लांट. बाम्बू का जो नोड रीजन है वो सॉलिड है, लेकिन उसका इंटरनोड हॉलो है. तो कॉल्म में क्या आएगा? सॉलिड नोड एंड हॉलो इंटरनोड. इस टाइप का प्लांट को बोलते हैं कॉल्म. एग्जाम्पल बाम्बूसा. बाम्बूसा इज द इंग्लिश नेम इज bamboo. It is called as bambusa. English name is bamboo. उसके बाद है एक्सकरेंट. एक्सकरेंट दैट इज द पिरामिड शेप प्लांट. आपने देखे होंगे कि एक्समास ट्री, जैसे कि कॉनिफर्स है, जिम्नोस्पर्म का कॉनिफर्स है, जो कि पिरामिड टाइप का होगा. जो नीचे वाला जो ब्रांच है वो बड़ा होगा, ऊपर वाला ब्रांच कम होगा. तो यहाँ पर क्या खासियत है कि जो मेन स्टेम का आइडेंटिटी अपर तक रहता है, ठीक है, और इसका जो ब्रांच डू नॉट डोमिनेट ओवर द मेन स्टेम और मेन ट्रंक. सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सकरेंट. दैट इज द पिरामिड शेप्ड. pyramid shaped and branches do not overcome or do not dominate on main trunk. Branches do not overcome. Branches do not overcome main trunk. ये मेनली पिरामिड टाइप का शेप है. एस्करेंट जो है वो पिरामिड शेप का प्लांट है, जिसका एग्जाम्पल है पाइन ट्री, यूकलिप्टस. तो एंजियोस्पर्म एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज यूकलिप्टस. अगर आप जिम्नोस्पर्म की एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज पाइन ट्रीज और पाइनस स्पेसीज. उसके बाद है डेलिक्वेशेंट. जो बानियन का पेड़ है, आम का पेड़ है, मैंगो ट्री, बानियन ट्री. बानियन ट्री का मतलब बरगद का पेड़, फाइकस बेंगालेंसिस, और पीपल ट्री, फाइकस रिलीजियोसा, फिग ट्री, फाइकस कैरिका. दीज आर ऑल एक्सटेंसिवली ब्रांच. आप अगर बरगद की पेड़ को देखेंगे, नीचे वाला ट्रंक तो होगा, लेकिन ऊपर को आप अगर उसका ऊपर देखेंगे तो इतना बड़ा बड़ा ब्रांच होगा. तो मेन ट्रंक जो ऊपर की तरफ गायब रहेगा, डिसअपियर हो जाएगा. क्योंकि जैसे ही वो देखिए एक्सकरेंट वाला, देखिए एक्सकरेंट में मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम है. नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला इसमें ब्रांच है, इसमें ब्रांच है, नीचे वाला ब्रांच ग्रेजुअली छोटे होते हैं. तो एक पिरामिड टाइप का शेप हो गया, पिरामिड टाइप. तो मेन ट्रंक की आइडेंटिटी ऊपर तक रहता है, ये हो गया एक्सकरेंट. लेकिन आप देखें तो जो ये बरगद का पेड़ है, उसका मेन ट्रंक से इतना बड़ा बड़ा ब्रांच निकलता है, इतना बड़ा बड़ा ब्रांच निकलता है, क्योंकि मेन ट्रंक ऊपर की तरफ नहीं रहता है. यहाँ पर मेन ट्रंक ऊपर की तरफ रहता है. तो मेन ट्रंक आइडेंटिटी यहाँ पर लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पर मेन ट्रंक आइडेंटिटी इज लॉस्ट. सो इसका जो शेप है ये एक डोम टाइप का शेप हो जाता है. तो दिस इज डेलिक्वेशेंट.
डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इसका जो ब्रांचेस है, डेलिकेशन में जो ब्रांचेस है दैट ओवरकम द मेन ट्रंक, सो मेन ट्रंक disappears towards the upper side, but यहाँ पर branches do not overcome the main trunk, so main trunk remains towards the upper side. This is the main difference between excurrent and deliquescent. So इसको बोलते हैं, जैसे हम excurrent को क्या बोले, पिरामिड शेप बोले, यहाँ पर इसको बोलते हैं डोम शेप्ड, ये डोम शेप्ड है। एंड मेन ट्रंक इज डोमिनेटेड बाय ब्रांचेस, सो मेन ट्रंक ऊपर की तरफ डिसअपीयर हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आपको ऑलरेडी मालूम है, फाइकस के जो डिफरेंट स्पेसीज है, फाइकस एग्जाम्पल, इसको हम बोलेंगे फाइकस स्पेसीज, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस कैरिका, फाइकस रिलीजियोसा, so the genus name is फाइकस। ये तो डिफरेंट ट्री हो गया। नेक्स्ट इज नंबर 4, ट्री में डिफरेंट टाइप हो गया, काउडेस, कॉल्ब, एक्सकरेंट एंड डेलिक्वेशन। नंबर 4, नेक्स्ट टू द ट्री विल गो नंबर 4, दैट इज ट्रेलर्स। जो वीक स्टेम होता है, जो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, जो ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, उसको हम वीक बोलेंगे, वीक स्टेम, या उसको बोलेंगे प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट स्टेम। ओके, so growing horizontally on ground, so trailers are weak, prostate, weak prostate stem growing horizontally on ground, तो ग्राउंड के ऊपर पैरेलली रन करता है या हॉरिजॉन्टली रन करता है, दुबला स्टेम है, सीधा खड़ा नहीं पाता है, बट हियर इट डू नॉट गिव रूट, ये रूट नहीं देता है। जो रन करता है एक जगह से निकल के रन करेगा, लेकिन रूट नहीं देगा, डू नॉट गिव रूट्स। इसका एग्जाम्पल है ऑक्जालिस, एक प्लांट है ऑक्जालिस, इसका साइंटिफिक नेम ऑक्जालिस है, जेनस नेम उसको बोलते हैं वुड सोरेल, इट्स कॉल्ड वुड सोरेल। वही ट्रेलर में अगर इसका एक दूसरा टाइप है, अगर वो रूट दे देगा तो उसका नाम हो जाएगा क्रीपर्स, जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, उसको क्रीपर्स बोलते हैं या रनर्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रीपर्स और रनर्स। Number 5 is creepers, या इसको बोलते हैं रनर्स। सेम है आज लाइक द ट्रेलर्स, बट यहाँ पर डिफरेंस है, ट्रेलर डू नॉट गिव रूट्स, बट हियर क्रीपर्स गिव रूट्स। प्रोस्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग विथ रूट्स, सो प्रोस्ट्रेट horizontally growing with roots। तो एग्जाम्पल है वेरियस ग्रासेस, वन कॉमन ग्रास इज साइनोडॉन, इसको बोलते हैं दूब ग्रास, इन ओडिया इट इज कॉल्ड दुबो घास, दूब ग्रास। नेक्स्ट है ट्विनर्स, कुछ प्लांट होते हैं जो कि ट्विन करते हैं, ट्विनर्स,
सपोज एक सपोर्ट के चारों तरफ एक सपोर्ट है, वो प्लांट उसके चारों तरफ घूमेगा ऐसे, either clockwise or anti-clockwise, but never touch to the support. It only twins around the support. Spirally coiled. It is spirally coiled around a support. Spirally coiled around a support. Spirally coiled around a support, that is twiners. Then is climbers. Climb on a support by help of spines, hooks, tendril. ऐसे आपको मालूम होगा कि कुछ प्लांट्स बहुत वीक होते हैं जो कि अपने आप सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं, दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दे हैव टू क्लाइम ऑन ए सपोर्ट. कोई भी सपोर्ट होगा तो स्पाइन के द्वारा या फिर स्पाइरली कॉइल्ड स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड टेंड्रिल्स और हुक होगा, उसके सपोर्ट में वो क्लाइंब करते हैं. सो ट्विनर्स आर डिफरेंट एंड क्लाइंबर्स आर डिफरेंट. ओके, सो नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. सो क्लाइंब ऑन ए सपोर्ट, climb on a support by the help of spines, hooks and tendrils. आपको मालूम है कि प्लांट में इसे एक सपोज एक प्लांट है, यहाँ से इसे एक लीफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्पाइरल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकलता है. स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेंड्रिल. सो जो टेंड्रिल के द्वारा भी क्लाइंब कर सकता है. सो दीज आर नोन एज क्लाइंबर्स. नेक्स्ट है लियानास. सो लियानास भी एक टाइप का क्लाइंब है, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर है, यानी कि वुडी क्लाइंबर. एंड पर्टिकुलरली लियानास इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Lianas is called woody climbers found in tropical rainforest. So found in tropical rainforest, that is called the woody climber. Epiphytes. Next plant group is epiphytes. जो प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर सपोर्ट में ग्रो करता है. एपिफाइट्स आर नॉट पैरासाइट्स. एक प्लांट के ऊपर अगर दूसरा प्लांट उसके सपोर्ट में ग्रो करेगा, मतलब वो ओनली स्पेस लेगा, कोई खाना नहीं लेगा, कोई वाटर मिनरल्स फूड वो नहीं लेगा. अगर वाटर मिनरल फूड ले जाएगा तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइट. फूड ना लेके भी वाटर मिनरल लेगा तो भी पैरासाइट होगा, और तीनों ले लिया वाटर मिनरल एंड फूड तो वो कंप्लीट पैरासाइट हो जाएगा. लेकिन अगर स्पेस ओनली लेगा दैट इज एपिफाइट. सो सम प्लांट्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स ओनली फॉर सपोर्ट और ओनली फॉर स्पेस. एग्जाम्पल भंडा. भंडा एक प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट की सपोर्ट में ग्रो करता है. सो भंडा इज द एग्जाम्पल ऑफ एपिफाइटिक प्लांट और एपिफाइट.
सो बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन, एक प्लांट की लाइफ पीरियड बा लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन कितने समय का है, उसके ऊपर बेस करके प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन, प्लांट्स को 3 कैटेगरी किया गया है। एक है annual plant, one is annual plant, next one is biennial plant, next is perennial plant. So annual, biennial and perennial, जो प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है विद इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड एनुअल प्लांट। कंप्लीट लाइफ स्पैन विद इन 1 ईयर। तो मोस्टली सीजनल प्लांट्स जो है, एक सीजन में वो आएंगे, उसके बाद वो अपना काम खत्म करके लाइफ साइकिल मेंटेन करके वो चले जाएंगे। उनके जो सीड्स होंगे वो फिर नेक्स्ट सीजन में ग्रो करेंगे, वो भी थोड़े समय के लिए ग्रो करेंगे, कुछ महीना। जैसे कि राइस प्लांट खेती, तो जो चावल की खेती होती है या पैडी जो क्रॉप होती है वो तो हर साल होती है ना, तो एक पैडी क्रॉप एक ही साल में उसका लाइफ पीरियड होती है, तो वो एनुअल प्लांट है। बाइनियल है 2 ईयर्स, 2 ईयर प्लांट। सो फर्स्ट ईयर में वो क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में उनका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ इन द फर्स्ट ईयर, वो बढ़ेंगे लेकिन सीड्स नहीं देंगे, फ्लावर नहीं देंगे, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। सेकेंड ईयर में ये प्लांट रिप्रोडक्शन करेंगे। सेकेंड ईयर में दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर ओनली फॉर vegetative growth, but in second year they can give flower and produce seeds. Okay. So second year में वो रिप्रोडक्शन करेंगे, मतलब फ्लावर देंगे, फ्लावर होगा तो रिप्रोडक्शन होगा। सो एग्जाम्पल है रेडिश, रेडिश मूली, और यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं राइस, व्हीट एक्सेट्रा। तो इसका मतलब एनुअल एंड बाइनियल प्लांट और दिस प्लांट्स आर मोनोकार्पिक, क्योंकि एक बार लाइफ पीरियड में जो फ्लावर देगा दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पिक। सो प्रोड्यूस फ्लावर once in their life period. So लाइफ पीरियड में अगर एक ही बार अगर फूल देगा, सो दैट इज कॉल्ड एज मोनोकार्पिक प्लांट। अगर लाइफ पीरियड में बार बार मेनी टाइम्स मोर देन 1 फ्लावर प्रोडक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीकार्पिक। बट दिस वन इज कॉल्ड मोनोकार्पिक, क्योंकि एनुअल प्लांट तो एक साल में उसका लाइफ साइकिल है, इसका मतलब वो एक साल में ही अपना फ्लावर देगा। और बाइनियल में दूसरे साल में, फर्स्ट ईयर तो ग्रो करेगा, दूसरे साल में फ्लावर देगा, रिप्रोडक्शन करेगा, तो इसका मतलब दोनों एक ही बार फ्लावर दे रहा है। तो मोनोकार्पिक प्रोड्यूस और गिव फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ पीरियड। और जो पेरेनियल प्लांट है that survive for many years. So biennial का मतलब survive for 2 years. Biennial is survive for 2 years. Perennial survive for many years, यानी कि more than 2 years. Survive for many years. That is more than 2 साल के ऊपर अगर हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पेरेनियल प्लांट।
and is of two type. It can be monocarpic and it can be polycarpic. So both calm plant, few plants are monocarpic and most plants are polycarpic. So monocarpic का एग्जाम्पल क्या है? गिव फ्लावर ओनली वंस ड्यूरिंग लाइफ पीरियड, एंड पॉलीकार्पिक गिव फ्लावर मेनी टाइम्स मोर देन वंस ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड. सो इसका एग्जाम्पल है बाम्बू प्लांट. जो बाम्बू का प्लांट होता है वो अपना लाइफ पीरियड में 100 से 150 साल के अंदर, वो तो 150 साल के ऊपर तो जीता है बाम्बू प्लांट, तो 100 साल जब हो जाएगा उसको 100 के 150 के बीच में कभी भी वो फ्लावर दे सकता है. और पॉलीकार्पिक जो प्लांट है दैट इज बैनियन, मैंगो, जैक फ्रूट, जो कटहल होते हैं, उड़िया में इसको बोलते हैं पनस. सो ये सब प्लांट्स पॉलीकार्पिक है. दे कैन गिव द फ्लावर एवरी ईयर, यानी लाइफ पीरियड में हर साल वो फ्लावर देंगे. हर साल देंगे मतलब एवरी ईयर देंगे, उसका मतलब है मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड, नॉट वंस. सो दोज आर कॉल्ड पॉलीकार्पिक. Hello students, with continuation of the plant morphology, we will start with root. So all of you know that root is the descending organ of the plant because it goes inside the soil, so that's why it is called the descending part, and it goes away from the light, that's why called as the negatively phototropic, and goes towards the gravity, so called as the positively geotropic. So it is the descending organ, positively geotropic and negatively phototropic. So all the roots of all plants that are positively geotropic, but there are some exceptions in case of the mangrove plants, or those are known as the halophytes. So exception in mangrove plants, and these plants are halophytes. They grow in the saline soil. Their roots are known as the pneumatophores, and these pneumatophores are the branches of the taproot. This is a taproot modification. These pneumatophores are the branches of the taproot that emerge out of the soil for respiration. So because in mangrove plants there is water logging condition, so inside the marshy area or the more salty area, there is clay soil are there, muddy area is there, that is called the swampy area or marshy area, and the plants grow in the saline condition known as the halophytes, and there is always presence of a layer of water above the soil, इसलिए उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन. तो उस प्लांट में एयर मूवमेंट नहीं हो पाता है. इनसाइड द सॉइल देयर इज नो एयर मूवमेंट. देन हाउ द प्लांट कैन डू द रेस्पिरेशन? इसलिए उनका रूट के कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ है. जो उनका जो टैप रूट है, सपोज देख लीजिए ये टैप रूट है, ये तो है टैप रूट और प्राइमरी रूट. इसका जो ये ग्राउंड है, इसका टैप रूट से कुछ ब्रांचेस निकलेगा, उस ब्रांचेस से कुछ एयर की तरफ मूव करेगा. This is called pneumatophores, and here are many lenticels are there, pores are there, known as pneumatodes. So by these pores, this can take the air or oxygen from the atmosphere, because there is water is over the soil. Soil के ऊपर water रहता है, ground के ऊपर, तो water logging condition.
सो न्यूमेटोफोर के द्वारा ये एरेशन करेगा या रेस्पिरेशन करेगा. सो दिस इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. दैट्स व्हाई इट इज negatively geotropic. All the roots are positively geotropic, but here in the pneumatophores it is negatively geotropic. Particularly it is found in the mangrove plants. Mangrove plants like the mangrove plants, you know, that Soneratia, Rhizophora, Avicennia, these are all mangrove plants. Another exception is also there, apogeotrophic root. This is called negatively geotropic. Another root is there, exception, apogeotropic. Another exception is also apogeotropic roots. In cycas. Cycas is a gymnosperm. Here apogeotropic means roots parallel to the ground below soil. Roots parallel to the ground below soil. तो सॉइल के नीचे रहता है रूट, लेकिन वो अंदर की तरफ नहीं जाता है, वो जस्ट सॉइल के बिलो ये पैरेलली रन करता है अंडर द ground. That is called as apogeotropic roots. And root can sense the gravity. जैसे कि मैक्सिमम रूट में जो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है वो ग्रेविटी की तरफ जाता है, तो रूट के जो रूट कैप होती है वो सेंस कर सकता है. तो रूट कैप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूट कैप सेंस the gravity. So gravity को रूट कैप सेंस कर सकता है. Then we'll go to what is the main functions of root. There are different functions of root. आपको मालूम है मेन फंक्शंस क्या है रूट का. रूट तो एंकरेज करता है प्लांट को, दैट होल्ड द प्लांट टू द सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड ऑल्सो मॉडिफिकेशन के द्वारा ये स्टोरेज भी कर सकता है. रूट कैन स्टोर द फूड मटेरियल. जैसे हम रेडिश खाते हैं, मूली, गाजर, कैरोट्स, ओके, एंड ऑल्सो देन इज beet, sugar beet. Okay, all these are the edible parts of the plant, the edible roots of the plant. उसको हम food जैसा use करते हैं. तो that is because we are using this as food because these are the storage organ, storage for food. So उसके जो functions में क्या आएगा, anchorage, storage of food. function से एक है anchorage, plant को hold करके रखेगा सॉइल के साथ. स्टोरेज ऑफ फूड, सभी रूट का नहीं, ये कुछ स्पेसिफिक रूट का स्टोरेज होता है जो कि मॉडिफाई होता है. ओके, स्टोरेज ऑफ फूड, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. एंड अनदर very great important function is synthesis of phytohormones. कुछ प्लांट हार्मोन्स भी रूट सिंथेसिस करता है. सिंथेसिस ऑफ phytohormones. So these are the functions of the root. अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे रूट को, so mainly 3 types of roots are there. Three types of roots are there. So one is the
taproot, then is fibrous root, then is adventitious root. So fibrous root is also a type of, ये भी एक type of adventitious root है, adventitious root, ये भी एक type of adventitious root है, लेकिन इसका नाम है fibrous root. क्योंकि taproot only in dicots, dicot plant में taproot होता है. This is only in monocots. So मोनोकॉट के जो एडवेंटिशियस रूट है, जो कि स्टेम के बिलो द बंच ऑफ रूट्स, हेयर्स ऑफ, that is hairy like structure, bunch of roots emerge, that is fibrous roots, that is in monocots. And adventitious roots, that is both in dicots and monocots. Okay. जो टैप रूट है, दैट टैप रूट दैट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो. ये डाइकट में जो मेन रूट होता है, दैट इज टैप रूट, जो कि निकलता है एम्ब्रियो से. आपको मालूम है कि एम्ब्रियो का दो पॉइंट है, प्लीमुल एंड रेडिकल. प्लीमुल ग्रोज टू फॉर्म शूट सिस्टम और शूट, एंड रेडिकल गिव्स द रूट. सपोज ये ग्राउंड है, तो ये एक है प्राइमरी रूट. दिस वन मेन रूट इज कॉल्ड एज द टैप रूट और प्राइमरी रूट. उसका जो ब्रांच निकलेगा, ये सपोज ब्रांच है, दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट. देन इसका जो ब्रांच है, सपोज सेकेंडरी रूट का जो ब्रांच आएगा, दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी रूट. एंड टर्शियरी रूट के जो वेरियस ब्रांचेस है, दिस इज कॉल्ड रूटलेट्स. सो दिस इज प्राइमरी रूट. दिस प्राइमरी रूट इज नोन एज, जो मेन रूट है, दैट इज कॉल्ड एज टैप रूट. And this one is secondary root, and this one is tertiary root. And these fine branches are known as rootlets. That means all these primary root and its branches together called as the primary root and its branches. Primary root, this primary root is tap root, secondary root and tertiary root, rootlets, all these are called as tap root system. That means in dicots tap root present and tap root system is also present, but in monocots only fibrous roots are present, because here टैप रूट भी निकलता है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है. जैसे यहाँ पर रेडिकल से टैप रूट निकलता है, यहाँ पर भी रेडिकल से टैप रूट निकलता है, बट दैट इज शॉर्ट लिव्ड. सो टैप रूट शॉर्ट लिव्ड. उसके बाद जब टैप रूट मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी क्विकली, मेनी हेयर लाइक रूट्स डेवलप्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. स्टेम की जो बेस है, वो बेस से मेनी हेयर लाइक रूट्स इमर्ज, दैट इज नोन एज फाइब्रस रूट. सो मेनी हेयर लाइक रूट्स डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, कॉल्ड एज फाइब्रस रूट. एंड उसका जो सिस्टम है टोटल, ईच वन इज नोन एज द फाइब्रस रूट एंड द सिस्टम इज नोन एज फाइब्रस रूट सिस्टम.
fibrous root system. Okay. सो जो ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम कैसा है, ये फाइब्रस रूट सिस्टम देखिए, ये सपोज ग्राउंड है, ये स्टेम है, तो स्टेम के ये जो टैप रूट, तो ये जो टैप रूट उसका ग्रो हुआ था, ये डेथ हो गया, दिस टैप रूट बिकम डेड. सो आफ्टर डेथ ऑफ द टैप रूट, लोअर जो नोड होगा, तो प्लांट का स्टेम का जो लोअर मोस्ट नोड होगा, लोअर मोस्ट नोड, वहां से बंच ऑफ हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स इमर्ज. बंच ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि ग्रासेस में दिखाई देता है, मोनोकॉट प्लांट में, जैसे कि मेज, राइस, व्हीट, देन इज सुगर केन, ये सब मोनोकॉट प्लांट है. सो मोनोकॉट प्लांट में दिस ब्रांच ऑफ रूट आर प्रेजेंट नोन एज द fibrous root. Each one is known as fibrous root and this bunch together called as fibrous root system. So अभी आपको मालूम चला कि डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम होती है और मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होती है. देन व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट? नाउ विल गो टू व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट, जो कि बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में दिखाई देता है. दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स. सो जो एडवेंटिशियस रूट्स है, that is developed from any other part of the plant, not from the radicle. Okay, developed any part of the plant, not from radicle of embryo. Developed from any part of plant, not from radicle of embryo. इसका मतलब क्या है? वो स्टेम की ब्रांच से भी निकल सकता है, लीफ से भी निकल सकता है, लेकिन एम्ब्रियो से नहीं निकलेगा. एम्ब्रियो से जो रूट निकलेगा दैट इज टैप रूट ओनली. इसलिए मैं यहां पर क्या लिखा हूं, द फाइब्रस रूट ऑल्सो ए टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि फाइब्रस रूट में ये रूट भी सारे स्टेम की बेस से निकला है. इसका मतलब ये रूट भी रेडिकल से नहीं निकला है, ये स्टेम से निकला है, इसलिए इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट. एडवेंटिशियस रूट का अलग हेडिंग है, लेकिन ये भी एडवेंटिशियस रूट है, लेकिन दिस इज ओनली इन मोनोकॉट. लेकिन एडवेंटिशियस ये भी एडवेंटिशियस रूट है, बाकी जो एडवेंटिशियस रूट है वो डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में दिखाई देता है. सो डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, नॉट फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो. तो कहां से निकलेगा? सो मोस्टली फ्रॉम स्टेम. ये ज्यादातर लीफ से भी निकल सकता है, लेकिन ज्यादातर निकलेगा मोस्ट प्लांट में ये स्टेम से निकलता है, मोस्टली फ्रॉम स्टेम. और इसका मतलब स्टेम का मतलब कहां से? फ्रॉम नोड से निकल सकता है, फ्रॉम एक्सिलरी बॉड. एक्सिलरी बॉड भी रूट में कन्वर्ट हो सकता है. बहुत सारे प्लांट है एक्सिलरी बॉड्स जो कि एक्सिल में डेवलप होता है. एंड सम फ्रॉम लीव्स. और कुछ एडवेंटिशियस रूट्स आर डेवलप फ्रॉम लीव्स. और देखिए यहां पर जो रूट के ब्रांचेस निकल रहा है, देखिए जैसे ये मेन रूट है ना, ये मेन रूट का नाम क्या है? प्राइमरी रूट. एंड दिस वन इज सेकेंडरी रूट. सेकेंडरी रूट का फिर ब्रांच है टर्शियरी रूट. ये ब्रांचेस को हम बोलते हैं लैटरल रूट्स. इसका मतलब ये जो सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ये सबको हम क्या बोलेंगे? लैटरल रूट्स. द ब्रांचेस आर नोन एज लैटरल रूट्स. तो ये लैटरल रूट कहां से ओरिजिन हुआ है? इसके अंदर में अगर आप टैप रूट के एनाटॉमी को जाएंगे, इसके अंदर में एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा, उसके बाद एंडोडर्मिस होगा, पेरिसाइकल होगा, ये सब डिफरेंट लेयर है.
तो ये जो ब्रांच निकल रहा है ये बहुत अंदर से निकल रहा है। अंदर की कौन सी पार्ट से? पेरिसाइकल से निकल रहा है। तो बहुत अंदर से निकल रहा है, पेरिसाइकल से निकल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोजेनस ओरिजिन। तो रूट के जो ब्रांचेस है या लैटरल रूट से, दैट इज एंडोजेनस ओरिजिन। लेकिन जो स्टेम के जो ब्रांचेस निकलता है वो आउटरी लेयर से निकलता है, आउटर लेयर से, दैट इज कॉटेक्स लेयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोजेनस इन ओरिजिन। ये बात आप याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट्स। ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट्स, लैटरल रूट्स का मतलब क्या है? ब्रांचेस ऑफ द रूट्स। दिस ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट्स आर एंडोजेनस। So lateral roots are endogenously originated. So endogenous का मतलब है from pericycle. And the origin of lateral stem branches, lateral stem branches, that is exogenous, that is from cortex. जो स्टेम ब्रांचेस जो है दैट इज एक्सोजेनस इन ओरिजिन, दैट इज फ्रॉम कॉटेक्स, एंड द रूट्स के जो ब्रांचेस है दैट इज एंडोजेनस इन ओरिजिन। आपको मालूम है कि स्टेम में क्या होता है? नोड्स, स्टेम एंड रूट के बीच में क्या डिफरेंस है? मेन बेसिक डिफरेंस, स्टेम में नोड्स होता है, इंटरनोड्स होता है, बॉड्स भी होती है, लेकिन जनरली रूट्स में नोड, इंटरनोड्स एंड बॉड्स नहीं होती है। सो रूट्स डू नॉट हैव nodes, internodes and buds, but there are some exception cases where the buds are found in some roots. Okay, so next important, these are also important points, will not found in the NCERT, they have all important points. हम NCERT के साथ जा रहे हैं लेकिन कुछ कुछ बीच बीच में important points हम दे रहे हैं, you have to note it down. Okay, so roots do not have nodes, internodes and buds. Do not have nodes, internodes and buds. But there are some exception cases where the root buds develop, and these root buds for vegetative propagation or vegetative reproduction, and in certain plants root buds develop. The example is the Ipomoea, that means sweet potato. Another is the Dalbergia. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? That is Ipomoea. This is the genus name of sweet potato. Now this is Dalbergia. Dalbergia is a timber plant, sesame plant जिसको आप बोलते हैं sesame plant. So these are the exception cases where the buds are present in the roots. Otherwise, in general, roots do not have any buds. Nodes, internodes तो नहीं होता है, buds भी नहीं होता है, लेकिन कुछ केस में exceptionally in some plants the buds are found in the roots.
Another important point is podostemon. Another important point is, it is also very important, पोडोस्टेमन एक प्लांट है, एक एक्वाटिक प्लांट है, पोडोस्टेमन इसका नाम है। इसका जो बॉडी है, एंटायर प्लांट बॉडी इज रूट, एंटायर प्लांट बॉडी, उसका कोई स्टेम लीफ नहीं है, द प्लांट बॉडी इज एंटायरली रूट एंड दैट रूट इज एसिमिलेटरी रूट। दैट रूट एक्चुअली वो सरफेस के ऊपर रहता है और वो ग्रीन कलर है एंड ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन कर सकता है, उसमें क्लोरोफिल डेवलप हुआ। इसका पॉइंट्स लिख लीजिए। पोडोस्टेमन प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट, प्लांट बॉडी इज एंटायरली रूट, एंड दिस जो रूट है, इसका जो रूट है, प्लांट बॉडी जो एंटायर रूट है, वो एसिमिलेटरी रूट है। एसिमिलेटरी या आप उसको बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक रूट। ये ग्रीन कलर है, एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट, दैट इज ग्रीन कलर, यानी कि क्लोरोफाइलस आप उसको बोल सकते हैं। क्लोरोफाइलस मतलब जिसमें क्लोरोफिल डेवलप हुआ, ये क्लोरोफाइलस है, मतलब ग्रीन कलर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। If you go to the zonation of root, different zones found on the root, particularly 4 zones, or you can call it that zonation of root. In NCERT there is given 4 zones, actually there is presence of 5 zones. So zonation में क्या है देख लीजिए। Suppose you have to, you can study the diagram of NCERT. ये टैप रूट है और ये है रूट कैप, और यहाँ बिहाइंड द रूट कैप ये अपेक्स ऑफ द रूट है, दिस इज अपेक्स, क्योंकि रूट ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है ना, ग्राउंड के नीचे तो उसका टिप जो है वो नीचे होगा, तो दिस इज अपेक्स एंड दिस इज बेस ऑफ द रूट। ओके, सो अपेक्स की जस्ट एबव आप नहीं बोलेंगे, बिलो बोलेंगे। यहां पर जो द ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट, यानी कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट इज प्रेजेंट हियर, जस्ट बिहाइंड बोल सकते हैं आप, इसके पीछे या इसके बिलो बोल सकते हैं, ऊपर मत बोलिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर है रूट कैप जोन, रूट कैप के ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन नहीं है। सो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो टेक्निकली वी शुड बी मोर अलर्ट। सो दिस इज द रूट कैप जोन, आप उसको जोन बोल सकते हैं या रीजन। दिस इज द मेरिस्टेमेटिक जोन। एंड इसके बाद जो जोन है, मेरिस्टेमेटिक जोन के बाद ये सब सेल्स एलोंगेशन हो गए, जोन ऑफ एलोंगेशन, यानी जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक द्वारा डिवाइड होके जो सेल्स ऐड हुआ है वो सब एलोंगेट करेंगे, एलोंगेशन होने के बाद मैच्योरेशन करेंगे। दिस इज द फेजेस ऑफ ग्रोथ। पहले सेल डिवाइड होता है टू ऐड द न्यू सेल्स, न्यू सेल्स जो ऐड होता है वो एलोंगेट होता है, एलोंगेशन के बाद वो मैच्योरेशन होती है, तो दिस इज नोन एज एलोंगेशन जोन। क्योंकि देखिए, सपोज देख लीजिए कि ये जो रूट है यहां पर मेरिस्टेमेटिक जोन है। सपोज मान लो कि जब रूट छोटा था यहां पर मेरिस्टेमेटिक जोन था, आज ये इतना तक ग्रो कर चुका है, यहां तक आ चुका है, मतलब यहां तक वो आ चुका है, तो यहां से वो सेल डिवाइड करके इसका टिप यहां पर आके पहुंच गया है, यहां पर मेरिस्टेमेटिक जोन आ गया। तो जो सेल वो ऐड करते हुए आया है वो सेल अभी क्या होंगे, वो एलोंगेशन होंगे। अंडरस्टूड माय पॉइंट? और जब फिर नीचे आ जाएगा, जो एलोंगेशन हुए वो मैच्योरेशन हो जाएंगे और यहां पर एलोंगेशन होगा। सो इट
follows one after another, okay, like that. And उसके बाद मैच्योरेशन जोन है जहां पर सेल मैच्योर हो रहा है, and here the root hairs are present. This is the zone of maturation. So this is called maturation zone or zone of maturation or permanent zone or known as the root hair zone, क्योंकि मैच्योरेशन जोन में ही रूट हेयर होता है. उसके बाद जो जोन है यहां पर दिस इज कॉल्ड मैच्योर सेल जोन. मैच्योर सेल जोन इसका मतलब यहां पर ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है. यहां पर मैच्योरेशन जोन मतलब यहां पर मैच्योरेशन चल रहा है. यहां पर ऑलरेडी द सेल्स हैव बीन मैच्योर्ड. सो दीज आर द डिफरेंट जोनेशन ऑफ द रूट. सो जो रूट कैप जोन है ये एक्चुअली थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, आपका एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, एंड इसका मेन फंक्शन है कि ये मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्शन देता है और ये सिक्रेशन करता है म्यूकस या कुछ लुब्रिकेंट फ्लूइड ये सिक्रेशन करता है जो कि म्यूसिलेजिनस फ्लूइड, जिसको प्लांट म्यूकस बोलते हैं. एनिमल में तो ये म्यूकस होता है, दैट इज प्लांट म्यूकस, म्यूसिलेजिनस फ्लूइड दैट इज सिक्रेटेड बाय रूट कैप जोन. और वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है. जब वो पेनिट्रेशन करता है ना रूट सॉइल के अंदर तो फ्रिक्शन होना चाहिए, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा. सो यहां पर सिक्रेशन होता है, म्यूसिलेज सिक्रेशन होता है. सो म्यूसिलेज सिक्रेशन के लिए कौन सी ऑर्गेनल, यहां पर जो सेल होंगे उसमें कौन सी ऑर्गेनल ज्यादा होगा? गोल्गी बॉडीज, बिकॉज गोल्गी बॉडीज आर द ऑर्गेनल ऑफ सिक्रेशन. सो रूट कैप जोन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Golgi bodies are present. Maximum amount of Golgi bodies. So generally single layered root cap is there. और ये रूट कैप जो है ये अगर फ्रिक्शन से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा फिर दोबारा नया रूट कैप फॉर्मेशन हो जाएगा. अंडरस्टूड? So root cap zone, abundant Golgi body, mucilage secretion, और ये म्यूसिलेज सिक्रेशन किस लिए होगा? दैट इज प्रोवाइड लुब्रिकेशन, क्योंकि पेनिट्रेट करता है ना सॉइल को, इसलिए लुब्रिकेशन होना बहुत जरूरी है. सो दैट प्रोवाइड लुब्रिकेशन. सो रूट कैप का अनदर नेम है, इज कॉल्ड कैलिप्ट्रा. रूट कैप ऑल्सो कॉल्ड कैलिप्ट्रा. और ये कहां से ओरिजिन हुआ है? दैट डिराइव फ्रॉम कैलिप्ट्रोजेन. एक टिश्यू है जो कि यहां पर है, यहां पर एक टिश्यू है, दिस कॉल्ड कैलिप्ट्रोजेन. Just between the merismatic zone and the root cap there is a small mass of tissue known as calyptrogen. और ये कैलिप्ट्रोजेन ये रूट कैप फॉर्मेशन करता है. सपोज मान लो कि एक रूट कैप डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि रूट कैप तो सिंगल लेयर है, वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो न्यू रूट कैप आर फॉर्म फ्रॉम कैलिप्ट्रोजेन. सो ऑल्सो कॉल्ड कैलिप्ट्रा, डिराइव फ्रॉम calyptrogen. Okay. So generally you know that generally single layered root cap present और इट कैन बी रिप्लेस्ड. अगर एक सिंगल लेयर वाला रूट कैप है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा फ्रिक्शन से तो दैट विल बी डिस्ट्रॉयड एंड नया रूट कैप फिर कैलिप्ट्रोजेन बनाएगी. सो रूट कैप कैन बी रीजेनरेटेड. ओके. सो रूट कैप सिंगल लेयर, रूट कैप है सिंगल लेयर एंड कैन बी रीजेनरेटेड. इफ डिस्ट्रॉय अगर होगा तो नया रूट कैप फिर से फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, कैन बी रिप्लेस्ड और रीजेनरेटेड.
कैन बी, इधर हम लिख देंगे रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड एंड रीजेनरेटेड। कौन करेगा? बाई कैलिप्ट्रोजेन। कहाँ लिखा? या बाई कैलिप्ट्रोजेन। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? मल्टीलेयर्ड रूट कैप आर प्रेजेंट, मल्टीपल रूट कैप। देखिए इन द स्क्रू पाइन प्लांट, मतलब पंडानस उसका जेनस है, स्क्रू पाइन इसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें कुछ एरियल रूट होते हैं जो कि पेनिट्रेट नहीं करते हैं सॉइल को, एरियल, और वो स्टिल्ट रूट है, वो एक मॉडिफाइड रूट है, ठीक है, वो स्टिल्ट रूट है, एरियल स्टिल्ट रूट। तो वो एयर में हैंगिंग होकर रहेगा, तो उसका रूट कैप बार बार फॉर्मेशन होगा, विदाउट डिस्ट्रॉइंग उसका रूट कैप बार बार फॉर्मेशन होगा। सो मल्टीपल रूट कैप वहां पर बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीपल रूट कैप इन पंडानस। इसका साइंटिफिक नेम है और इसका इंग्लिश नेम है स्क्रू पाइन, और इसका किसमें होता है? इन एरियल स्टिल्ट रूट। एरियल स्टिल्ट रूट में उसका मल्टीपल रूट कैप होता है। जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं उनमें रूट कैप नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ रूट कैप, रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट। एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रूट कैप एंड रूट पॉकेट्स? तो रूट कैप अगर डिस्ट्रॉय होगा तो वो रीजेनरेट हो सकता है, लेकिन वंस द रूट पॉकेट इज डिस्ट्रॉयड दैट कैनॉट बी रीजेनरेटेड। ओके, सो इन हाइड्रोफाइट्स, कौन सा हाइड्रोफाइट प्लांट है? जैसे कि पिस्टिया है, लेमना है, आइकॉर्निया है, ये सब हाइड्रोफाइट्स प्लांट है। इन हाइड्रोफाइट्स लाइक पिस्टिया, लेमना, आइकॉर्निया, जो कि ये सब साइंटिफिक नेम है, ठीक है। रूट पॉकेट्स प्रेजेंट, इसमें रूट, ये हाइड्रोफाइट प्लांट है, इसमें रूट कैप की जरूरत नहीं है, लेकिन रूट पॉकेट्स क्यों चाहिए? फॉर मेंटेनिंग बायंसी। ये स्टोर करते हैं, रूट पॉकेट्स स्टोर एयर एंड मेंटेन बायंसी। रूट पॉकेट्स प्रेजेंट instead of रूट कैप। सो रूट कैप की जगह में वहां पर रूट पॉकेट्स है। सो इसका क्या काम है? स्टोर एयर। जो रूट पॉकेट्स है, रूट पॉकेट्स, इसका फंक्शन है स्टोर एयर, मेंटेन बॉयंसी। फ्लोटिंग में हेल्प करेगा ये। बॉयंसी मेंटेन करेगा मतलब फ्लोटिंग में हेल्प करेगा। सो बॉयंसी एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एंड कैन नॉट बी रीजेनरेटेड। वंस अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये फिर से नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब है रूट कैप्स कैन बी जनरेटेड। रूट कैप डिस्ट्रॉय होगा तो जनरेट हो सकता है, लेकिन रूट पॉकेट अगर वंस डिस्ट्रॉय हो गया तो दैट कैनॉट बी जनरेटेड।